اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ حصہ اے میں ہم اس میں قرآن کا حصہ پڑھیں گے اور حصہ بی میں ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے قرآن پاک میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور گرامر میں فعل ماضی میں دارابا، سامعہ، عالمہ اور عاملہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نکات تعلیم یہ شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 16 نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں 1966 بار، یعنی ایک گھنٹے میں آپ تقریباً 2000 بار آنے والے الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سبق کے اختتام تک ہم 131 الفاظ سیکھ لیں گے جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 31,000 بار آئیں۔ تو تعارف لیتے ہیں سب سے پہلے سورۃ اخلاص کا۔ ابتدائی مکی سورت ہے، اس کا نام اخلاص ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی سمجھ کر اس کو پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور لوگ جو بہت پوچھتے تھے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب ہے کہ ہمارا، ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں کیا خصوصیات ہیں جو یکتا ہے جس میں وہ بالکل، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت کیا ہے کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ابو درادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے اس صورت کی، اس لیے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں نا توحید کے، وہ تقریباً 1/3 قرآن میں آتے ہیں۔ زندگی میں کیسے لائیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اور اس جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا یہ معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب بھی سورۃ اخلاص میں ہے۔ اب پہلے اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے، پھر ہم اس کی شرح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کہہ دیجئے، ہوا ہمیں آتا ہے وہ، اللہ اللہ، احدن ایک ہے، دیکھو یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، جیسے ہم نے فعالہ فعل پڑھا، کالا بھی ایک فعل ہے۔ کالا کا مطلب ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کی جمع کریں گے تو وہ کالو بن جائے گی، جیسے فعالو ہم نے پڑھا تھا۔ تو کالا 530 بار اور کالو 332 بار یہ آئے ہیں۔ یہ کل اس کا فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہہ دیجئے، اور یہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آنے والا فعل ہے کالا، یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے اس کے ڈیٹیل۔ ہوا کا مطلب ہے وہ، اور اللہ کا اللہ۔ اب احدن، احدن کا مطلب ہے ایک، اکیلا، یکتا، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، تو ایک یا یکتا کے معنی میں یہ صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، احدن۔ اور یہ کیا ہے؟ تنوین ہے، تو یہ کیا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا اسم ہے، انمیوٹ کر کے بولیں۔ جی اس میں اسم نکرا ہاں، اسم شاباش، ہے۔ ٹکرا ہے، اس لیے کہ اس میں ال نہیں ہے، اس میں صرف تنوین ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ تو ہم نے اس ماڈل کے مطابق اس کو زندگی میں لانا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم تو اس کے اسباب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے کہا کہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، کس میں؟ ذات میں۔
وہ اکیلا ہے، اس کو کوئی رشتہ دار. صفات میں بھی وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس جیسا غیب کوئی نہیں جانتا، اس جیسی مدد کوئی نہیں کر سکتا. تو ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، چار چیزیں. یہ آپ کو ضرور آتا ہے سوال اس میں، کوئز میں. تو حقوق کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی. اختیارات، حرام و حلال کیا چیزیں ہیں، قانون سازی کیا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، یہ سب اللہ کا حق ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے کہ نہیں یہ چیز حرام ہے یا یہ حلال ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حرام حلال قرار دیا، جو اللہ تعالیٰ نے قانون سازی کر دی، جو معاملات طے کر دی کہ یہ چیز ایسے ہوگی، تو وہی، اس میں کوئی شریک ہے ہی نہیں. وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. جی کوئی ریپیٹ کرے کن چار چیزوں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے. ذات، ذات میں، ذات، صفات میں، صفات میں، جی، حقوق میں، اور اور اختیارات. اختیارات. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لیں گے، آپ کو آتا ہے پھر کوئز میں آتا ہے. اور کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں دیکھیں. اچھا، اب ہم نے اس کی ڈیٹیلز دیکھ لی. اب یعنی ہم نے مطالعہ بھی کر لیا، تصور احساس کے ساتھ کیا. تو ہمیں دعا کرنی ہے. کیا دعا کریں گے؟ دعا کریں گے کہ اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں. ان چاروں چیزوں میں ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یکتا مانیں. یہ ہمیں دعا کرنی ہے. پر صرف دعا سے تو کچھ نہیں بنے گا. ہم احتساب کرتے ہیں اپنا کہ میں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا میں اپنے نفس کی باتیں مانتی ہوں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر اگر جب ہم احتساب کرتے، پھر ہم پلان بناتے ہیں کہ نہیں نہیں، اب میں کوئی ایسا پلان بناؤں کہ میں اپنے نفس اور شیطان کی باتیں نہ سنوں. میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم اس کو. اور جب ہم اس سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں. یعنی کہ ہم پھر تبلیغ کرتے ہیں. تو یہ ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس سورت کو یا قرآن کے کسی بھی کلام کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں. جی آپ تصور احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے. کوئی آپ میں سے؟ جی عبد الرحمان بھائی، آپ اس کو پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ. شاباش. اور آپ نے یہ سب کچھ سکھانا ہے. جی بھائی پڑھیے. کوئی اور پڑھ لے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے. قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ، اللہ، احد، ایک ہے. احدن اسم ہے، یہ ایک ہے. اور اس معنوں میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یکتا ہے. چاروں صفات ہم نے سیکھی ان میں. ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے اللہ الصمد. اب اس میں اللہ آ گیا تو یہ بھی اسم ہے. اللہ بے نیاز ہے. یہ ترجمہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز کا یہ مطلب ہے کہ سب اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ٹھیک ہے. ہماری ساری ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، لیکن اللہ کو کسی کی کوئی محتاجی نہیں، کسی کی کوئی ضرورت نہیں. اب اسباق ہم دیکھتے ہیں کہ بے نیاز ہم کہتے ہیں مطلب کیا کہ یعنی دیکھیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن ہم سب کو اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اپنی تمام مخلوقات کی ضرورت جس طرح پوری کرتا ہے، اسی طرح ہماری ضرورتوں کو بھی پوری کرتا رہا ہے. اے اللہ، آئندہ بھی ہماری ضرورتوں کو اسی طرح سے پورا کرتا رہے. تو اس طرح ہمیں دعا کرنی چاہیے. آپ ذرا تصور کریں، اتنی 8 کروڑ آبادی، اس سے زیادہ ہی ہوگی. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کو، اس کے علاوہ اتنی اور مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اپنے ذہن میں رکھیں گے، پھر اس آیت کو پڑھیں گے، تو پھر اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. خود بھی سیکھیے، لوگوں کو بھی اس کے معنی بتائیے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. ہم نے آپ کو نہیں والے الفاظ پہلے بتائے تھے. لا بتایا، ماں بتایا، پھر لم بتایا، لن بتایا. ٹھیک ہے. تو لم آپ کو پتا ہے. اب
यलिद और यूलद। अब लम जैसे हमने कहा, इसका मतलब डिड नॉट। देखिए ये या के साथ है, इसका मतलब है ये मुदारे का सीगा है, लेकिन जब लम है तो इसको डिड नॉट में कर देगा, माजी में ले जाएगा। तर्जुमा हम कर रहे हैं, ना इसने किसी को जना, ये पास्ट टेंस है। और लन का मतलब होता है विल नॉट, वो फ्यूचर में मानी ले जाता है। लन यहाँ खैर नहीं है, यहाँ दोनों लम ही है। लम का मतलब है नहीं। यलिद, उसने जना। वैसे तो ये मदारी है कि लम की वजह से इसके माना क्या आ गया, माजी का माना आ गया, ना उसने किसी को जना। और ये एक्टिव वॉइस में है। वलम यूलद, ना वो जना गया। जैसे हम एक्टिव और पैसिव वॉइस इंग्लिश में कहते हैं ना, तो इस ये इन अरबी में हम इनको कहते हैं ये मजहूल है, ये वाला मजहूल है। यूलद, ना वो जना गया। अब हमें वालदा, वालदैन, औलाद, विलादत से यलिद और यूलद की समझ आती है। ठीक है, आगे ये फेल हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। वा का मतलब और सबको पता है, लम का मतलब है ना ही। यूलद, वो जना गया, तो ये इसकी पैसिव वॉइस है। यलिद इसकी एक्टिव वॉइस है। जी बताइए, यलिद क्या है, एक्टिव है या पैसिव वॉइस है? ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है। और यूलद जो है ये पैसिव वॉइस है, इसको मजहूल भी एक्टिव। कहते हैं। यूलद जो है वो मजहूल है। ठीक है, ये हमने याद रखना है। और लम का मतलब है डिड नॉट, इसलिए पास्ट में मतलब आ रहा है। ठीक है, इसका पास्ट में मतलब आ रहा है। यलिद, उसने जना, एक्टिव वॉइस। यूलद, वो जना गया, पैसिव वॉइस। ये आप इसको अच्छी तरह से याद रखें। अब इसको जिंदगी में लाने के लिए इस बात देख ले, देखें। टीचर इनकी पहचान कैसे करें? ये आपको पढ़ाएंगे, ये देखे ना। ये इसमें पेश तो नहीं आती ना कोई फेल, इसको हमने ऐसा अभी तक नहीं पढ़ाया जिसके शुरू में पेश आ जाए। तो इसमें शुरू में पेश आती है, फेल मदारे के शुरू में पेश आती है, दूसरे पे जज्म होती है, तीसरे पे जबर आ जाती है। अगर माजी होता है तो उसके शुरू में पेश आती है और नीचे जो है वो जेर आ जाती है। अगर मजहूल हो, वो आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपसे नहीं हम ये पूछेंगे। ना इसकी कोई औलाद है जी। अल्लाह ताला की, ना ही वो किसी की औलाद है, इसका यही मतलब हुआ ना, कोई नहीं जना। अब औलाद क्यों नहीं अल्लाह ताला की जरूरत? देखिए हम इंसान है ना, थक जाते हैं तो बच्चे हमारा दिल बहलाते हैं, इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे उसका सहारा बनते हैं, जब मर जाता है तो बच्चे उसका नाम और काम जारी रखते हैं। कि अल्लाह ताला तो इन सब कमजोरियों से पाक है, इसलिए उसको औलाद की जरूरत नहीं, वो थकता नहीं है और ना ही वो बूढ़ा होता है। अल्लाह ताला को औलाद की कोई जरूरत नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ना ही उसकी कोई औलाद है, उसको जरूरत ही नहीं है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, जो 150 करोड़ ईसाई हैं उनको ये पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, कोई बताएगा म्यूट करके? ईसाइयों को ये बात बताने की क्यों जरूरत है? जी जी, क्योंकि इसलिए कि ईसाई जो हैं उनका ये अकीदा है कि नऊज़ बिल्ला अल्लाह ताला जो है वो उनके साथ दो शरीक हैं। उसके ईसा अलावा हजरत अलैहिस्सलाम को। ईसा को कहते हैं ना वो उनका बेटा है, जी तो जी। तौबा नऊजुबिल्लाह। वो- तो ये इनको पैगाम दे बचाने की जरूरत है कि ये कितनी गलत बात वो करते हैं। तो लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। ठीक है, इसको सीखिए और बाकी लोगों को भी सिखाइए। अब अगली आयत लेते हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वा और लम नहीं, यकुल है, लहू दो टुकड़े करेंगे, ला और हु। ठीक है, ला हरफे जर है, हु जमीर हु। कुफुवन का मतलब है हमसर, बराबरी करने वाला। अहद उनका मतलब यहाँ पे कोई आता है कि कोई नहीं है, ना वाली सेंस में मतलब वही है कि वो अकेला ही है। लेकिन यहाँ पे याद रखे कि यहाँ इसका मतलब अगर कुफुवन आ जाएगा तो कोई हमसर नहीं है, इसका कोई हमसर। यहाँ याद रखें कि इस आयत में इसका मतलब क्या है, कोई। वलम यकुन, और नहीं है इसका या इसके लिए कोई शरीक, कोई हमसर। हमसर मतलब था बराबरी करने वाला। कुफुवन, जैसे हमने पढ़ा था लहू, फिर हमने लका पढ़ा, लकुम पढ़ा, दीनुकुम पढ़ा। ठीक है, वलिया, ये सारा टेबल हमारा जो है हमने उसके हरूफ जर को जमायर के साथ मिला के पढ़ा था। उसी तरह से ये लघु, तो उसका जो है कुफुवन का मतलब है हमसर या बराबरी, बराबरी करने वाला, बराबरी वाला। जैसे जब शादी तय करते हैं, रिश्ता तय करते हैं किसी का, तो कहते हैं जी लड़की का खानदान और लड़के का खानदान देखें, एक
तरह का उनकी कदरें हों, एक स्टाइल के उनके रवाज हों, और माली हैसियत भी एक जैसी हो। तो कफ या कुफुवन का ये मतलब है, ये आपको बराबरी वाली बात, ये इसलिए बनाया कि हमें इससे रेफरेंस से याद रहेगा। अहद उनका यहाँ मतलब कोई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? यकता, अकेला। तो कोई नहीं, देखिए कोई नहीं, कोई मनफी मानों में, यानी कोई नहीं है वही बात के वो अकेला है। जैसे हमने कुल वल्लाहु अहद में, इसका अहद का मतलब यहाँ पे एक था। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद में कोई, ये नफी माने में, नेगेटिव मानों में आ रहा है, लेकिन मतलब उसका वही बनता है कि उस कोई नहीं है उसकी बराबरी वाला, यानी वो अकेला है। तौहीद की बात है, सारी बात इसमें तौहीद की बयान की जा रही सूरत इखलास में। इसको जिंदगी में लाने के लिए हम इसके इसबाक देख लेते हैं। देखिए अल्लाह ताला की अगर हम अजमत की बात करें, वो ऐसी है कि दूर दूर तक कोई भी वैसा नजर आ ही नहीं सकता, ना जात में, ना सफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। फिर यही चारों बात आ गई, ये पक्की पक्की याद कर, ठीक है? जात, सिफात, हकूक और इख्तियारात में अल्लाह ताला की अजमत, वो बिल्कुल अकेला है। सोचिए अगर मेरे ज़हन में कोई और हो ऐसा जिससे कि मैं डरता हूँ, किसी और से उम्मीद रखूं, किसी और को ताकतवर रखता हूँ, तो हम जब ये सोचे तो हम के नहीं नहीं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर दुआ क्या करनी चाहिए कि ए अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, यानी मेरी हिफाजत कर, मेरी जरूरतों को पूरा कर, ठीक है? तो हमें ये दुआ करनी चाहिए। इसको कोई एक दफा पढ़ ले तर्जुमे के साथ, अनम्यूट कर ले जिसने भी पढ़ना। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई। ठीक है, लहू वलम करके, और नहीं, शाबाश। जी, वलम और नहीं याकुन है लाहू उसका कुफुवन हमसर अहद कोई। कुफुवन और अहद क्या है? ये अस्मा है, दोनों पे तनवीन है, और लहू जी, के दो टुकड़े करेंगे, ला और हु। लाहू, जी, शाबाश, ठीक है। लाहू हरफ जार है, और और हु अजमीर है, ठीक है, जमीर है। हमीज है। शाबाश, ये दूसरों को भी आपने माने सिखाने हैं। अब देखिए इस सूरत को मोहब्बत से बार बार पढ़िए। इसका, इसके रेफरेंस में हम एक सहाबी का वाकया बयान करते हैं कि एक सहाबी सूरत को हर रकात में पढ़ते थे। तो किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये तो हर सूरत में पढ़ते हैं सूरत इखलास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो हम भी जब इसको पढ़े तो इस शौक और मोहब्बत से पढ़ें। अगर हमें भी इस सूरत से मोहब्बत हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। जैसे हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बड़ा चाहते हैं कि हम उसको बड़ा मुतासिर करें ना। तो हमें ये चाहिए कि हम इस सूरत से इतनी मोहब्बत कर लें कि ये फिर हमारे लिए जन्नत की राह इंशाल्लाह बनाएगी। तो देखें, मोहब्बत से बार बार पढ़िए, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, यानी अल्लाह के जैसा कोई नहीं, कोई उसके जैसा माफ करने वाला नहीं, कोई उसके जैसा जरूरियात पूरी करने वाला नहीं, कोई उससे ज्यादा मोहब्बत की, उसकी तरह मोहब्बत से ख्याल रखने वाला नहीं। माए कितने होते हैं, माँ बहुत मोहब्बत करती है, अल्लाह ताला 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है हम। अल्लाह जो है वो अल्लाह का जाती नाम है, और बाकी जो 99, 99 नाम है वो सब अल्लाह ताला की सिफात है। इन सब में अर्रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, सारे नाम 99 ले ले, ये सब अल्लाह की सिफात है। उसके जैसा ना कभी कोई था इन सिफात में, ना उसके जैसा कभी कोई हो सकता है। तो ये हर चीज में अल्लाह ताला जैसा कोई है। देखिए अगर शिर्क की हम बात करें और दूसरी गुमराहियों की, उसकी देखें वो कितनी गलत और गुमराह करने वाली और कितनी गंदी बातें हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि उसने हमें साफ पाक और सच्ची बात हम तक अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पहुंचा दी कि इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है, हमसे क्या चाहता है। अगर खुदा ना खास्ता हमें ये पैगाम ना मिलता तो हम भी पता नहीं ऐसा ही गलत मलत ख्यालात, गुमराही के दालीन की तरह उसमें परेशान रहते। इसलिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि तौहीद की इस सूरत, देखिए तौहीद की बात हो रही है, अल्लाह ताला के यकता होने की बात हो रही है। अल्लाह ताला का किसी चीज में कोई
हमसर बराबर नहीं है, कोई किसी को कि उसको किसी किस्म की कोई मोहताजी भी नहीं है, ठीक है, और लेकिन हम सब उसके मोहताज हैं। तो जब भी तौहीद की सूरत को पढ़ें तो दिल में शौक, मोहब्बत और अजमत भर के पढ़ें, और इस एक अल्लाह के पैगाम को फैलाने का भी प्लान बनाइए कि हमें लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं ब्रेक और हम ग्रामर शुरू करते हैं। इस दौरान अगर किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। एक आध सवाल हम अभी ले सकते हैं, बाकी फिर हम बाद में ले लेंगे। कोई सवाल नहीं है, सब समझ आ गई। सूरत इखलास तो आपको सबको आती है ना माशाल्लाह। लेकिन जैसे हमने आज पढ़ा है तो हमें उसका जो तर्जुमा अब जब हम नमाज में भी पढ़ेंगे या वैसे भी पढ़ेंगे तो जो समझ हमें अब आएगी या जो मजा अब आएगा वो पहले नहीं आता था, है ना? है ना ऐसी बात? जी। और दूसरों को बताएं, घर में बहन भाइयों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ठीक है। तो बस ये देखें कि हमने आगे सिखाना भी है। जब हम सिखाते हैं तो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर आप बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाते हैं। आया नहीं। हमने फेल माजी पढ़ना शुरू किया है, अभी उसी को ही हम जारी करेंगे। हम नेक्स्ट जो है दराबा और समिया वाला तनबीह खुल गया। नया वाला खुल नहीं रहा, वो पिछला है। आज जो मेरे साथ कर दिया ना कंप्यूटर में, की नहीं थी। अब हम ग्रामर का हिस्सा शुरू करते हैं। इसमें वही हम फेल माजी में आज दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला, ठीक है। जैसे हमने 2 बाब पढ़ लिए थे, अब तीसरा बाब पढ़ेंगे। ग्रामर हम कैसे करते हैं? टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। टीपीआई टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो हमें पता है कि इसम फेल हरफ 3 किस्में हैं अल्फाज या कलमे की। तो हम इस वक्त फेल पढ़ रहे हैं जिसमें हमें काम के करने या होने का पता चलता है, और इसमें और क्या पाया जाता है? जमाना पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हमने शुरू में अस्मा पढ़े थे, तो उसके साथ हमने जमायर को जोड़ा। जैसे किताबो हु, क्या मतलब है किताबो हु का? उसकी किताब, ठीक है। किताबो हम उन सब की किताब, किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबो कुम आपकी किताब, किताबो ना हमारी किताब। फिर हमने हरूफ को जमायर के साथ जोड़ा। मिन हूँ उससे, मिन हूँ उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे। अब हम जब फेल की बात करते हैं हम कहते हैं फाला उसने किया, फालू उन सबके सबने किया। तो इसके साथ इसके अंदर जमीर मौजूद है, हुआ की जमीर इसमें मौजूद है। फालू के अंदर हुम की जमीर मौजूद है, उन सब ने किया। फालता में तुम या आपकी जमीर मौजूद है, यू की, ठीक है। फालतू में आई, मैंने किया। फालतुम आप सब ने किया, ठीक है, यू ऑल। फालना हम सब ने किया। तो ये नहनो वाली जमीर इसमें मौजूद है। तो ये इन सब सीगों में ये जो है जमायर मौजूद होते हैं। यहाँ हमने जोड़े थे, यहाँ हम उस तरह नहीं जोड़ रहे। ये एक कॉन्सेप्ट है, अब याद रखिए। तो हमने बात की कि
ट्राइलेटरल इनको या सुलासी मुजर्रद कहते हैं, क्योंकि ये 3 हरूफ से बनते हैं अक्सर। तो हम फेल माजी पढ़ रहे हैं जो कि हो गया। सबसे पहला हमारा टेबल था, हमने फाला पढ़ा था। क्विकली जी फाला का टेबल कराएं, किसने करवाना है? जी सना जुल्फा फ़अला कराइए जी, कराइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। वेरी गुड। हल फाला का जवाब दीजिए, आप ही दीजिए। नाम नाअम फ़अला, हल फालू, नाअम फ़अलू, हल फाअलता, नाअम फ़अलतु, हल फाअलतुम, नाअम फ़अलना। फाअलना। थोड़ा सा लंबा करना है, फाअलना। ठीक है, नून जबर वाला नहीं हमने पढ़ना। ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर होगी। दो पेशका वाले का मतलब है ये क्या है, काम करने वाला है, इसकी असली हालत है, ठीक है, फाइल के तौर पे। और अगर दो जबर वाला आता है तो ये ऑब्जेक्टिव नाउन है जिसपे काम का असर पड़ रहा है। अगर मैं कहूँ हल फाला खैरन, तो क्या जवाब देंगे? आप ही दे दें। नाअम फ़अला फाला खैरन, खैरन, हल फालू खैरन, नाअम फ़अलू खैरन, हल फालता खैरन, नाअम फ़अलतु खैरन, हल खैरन, फालतुम खैरन। नाअम फ़अलना खैरन। शाबाश। तो यानी कि क्या तुमने अच्छा काम किया? तो उसे कहा हाँ, जी हाँ मैंने अच्छा काम किया। तो ता का जवाब हम तू से और तुम का जवाब ना से देते हैं, ठीक है। अब आज का हमारा सबक क्या है? दाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला। दाराबा का मतलब क्या होता है? उसने मारा। उसने दरबुन, दरबुन जो है उसका मसदर बनता है, उसको कहते हैं मारना। कुरान पाक में दराबन मसाला का मतलब है मिसाल बयान की। उर्दू में कभी हम कहते हैं जरबुल मिसल है ना, ये इसी से वो भी निकला हुआ। तो दराबा मसलन का मसलन है मिसाल बयान की। तो ये चूंकि कुरान में ऐसे आता है इसलिए बता दिया कि यहाँ मारने वाली बात नहीं है, इसका ये मतलब है, बस उसका रेफरेंस बता दिया। बाकी हमने दराबा का ही टेबल करना है, उसी तरह से ही होगा। दराबा उसने मारा, बाकी उसे जी टेबल में एक दफा कराती हूँ फिर आप करेंगे। दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जी कौन करवाएगा? दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दारबता आपने मारा, दारबतु मैंने मारा, दारबतुम आप सब ने मारा, दारबना हम सब ने मारा। जी फहद भाई आप भी करा दीजिए। ज़राबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। वेरी गुड। जी मरियम आप भी करवा दें। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सबने सबने मारा। मारा, दरबना हम सब ने मारा। वेरी गुड। अगर मैं सवाल करती हूँ हल दाराबा, तो सिस्टर मरियम क्या जवाब देंगी? अपना हाथ नीचे कर लें प्लीज और जवाब दें। हल दाराबा। ब्रदर आप दे दीजिए जवाब, उनका शायद वो म्यूट हो गए। मा दरबा, हल दारबू, मा दरब, हल दरबता मा दरब, तू, ठीक है। हल दरब तुम, मा दरबना। माँ दरबना। तो माजी की नफी हम माँ से करते हैं। मारना बुरी बात है ना, इसलिए हम नाम में जवाब दे रहे हैं, है ना। नाम भी कह सकते थे, तो नाम तो हम यह नहीं कहना सकते। फिर वही कॉन्सेप्ट जैदुन और जैदन की, ये तो अब आपको समझ आ गई है कि ये काम करने वाला फाइल है। ने, ने से हम कहें, और ये को जिसको मार पड़ी या जिसको लगा। हल दाराबा जैदन, इसका क्या मतलब है? हल दाराबा जैदन, मरियम इसका मतलब बताएंगे आप? क्या उसने जैद को मारा? वेरी गुड। तो वो जो उस है ना वो इसमें फाइल है, और जैदन जो है वो मफूल है, जैद को मार पड़ रही है। क्या जवाब देंगी इसका? मा दाराबा जैद, मा हल दाराबू जैदन। बाकी जवाब भी दो। मा दरबू जैदन, हल दरबता जैदन,
ما ضربت زیدن हल दरबतुम जायदन। ما ضربنا زیدن वेरी गुड। तो इतनी आपको बिल्कुल ये अच्छी कॉन्सेप्ट पता चल गई है। अब आ जाते सामिया। इसमें फर्क क्या है? जिसे मीम के नीचे जेर है, ये इसलिए अलहदा चौथा बाब बन जाता है। बाकी सब में देखा था तीनों जबर आ रहे थे, फाला पे भी, नासारा पे भी, दाराबा पे भी। ये नोट किया आपने बात? इसमें जेर आ रही। हम नमाज में पढ़ते हैं ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। समिया उसने सुना, माजी की बात हम कर रहे हैं। अब हमने इसका भी उसी तरह से ही टेबल बनेगा। सामिया उसने सुना, सामे उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना। जी जल्दी जल्दी करा दे, किसने करवाना है? जी सिस्टर सना सामिया करवा दीजिए, सना करा, कोई भी करा दे। जी आप करवा सामिया उसने सुना, सामियू उन सबने सुना, सामियता आपने सुना, सामियतु मैंने सुना, सामियतुम आप सबने वेरी गुड। समेना हम सब ने सुना, एक्सीलेंट। तो इसमें याद रखें कि यहाँ मीम के नीचे जेर है, तो यहाँ भी सबके मीम में वो जेर चलेगी वैसे ही। तब्दीली कहाँ आनी है? तब्दीली एंड में आनी है, ठीक है। अगर इसके मीम के नीचे जेर था तो यहाँ मीम के नीचे जेर ही चलेगा, ठीक है। इसकी गलती नहीं आपने करनी। हाँ जी जवाब दीजिए सवालों के। हल सामया, नाम सामिया, हल सामेउ, नाम सामियु, हल समेता, नाम सामियतु, हल समेतुम, नाम सामेना, नाम समीना। जी हाँ हम सब ने सुना। अब इसी तरह से अल कुरान नू, अब अल लग गया तो फिर तनवीन नहीं आती ना, फिर सिंगल पेश रह जाती है। इसी तरह यहाँ अगर अल लग गया तो सिंगल जबर रह जाएगी। तो इसी तरह से तनवीन की बजाय अगर अल आ जाए और सिंगल पेश हो और यहाँ अल के साथ सिंगल जबर हो, तो वही बात है कि ये जो है असल हालत है। इसमें सब सब्जेक्टिव नाउन या फाइल वाली बात होगी। और अगर अल कुरान ना है तो वही जैसे हमने कहा था ने और को वाली बात है, कुरान को ये ऑब्जेक्ट के तौर पे है, ये करने वाला होगा। अल के साथ हमें पता है कि तनवीन कभी नहीं आती, ये याद रखें। तो वो सिंगल हरकत रह जाती है। अगर दो पेश वाली थी तो वो सिंगल पेश रह जाएगी, दो जबर वाली थी तो सिंगल जबर रह जाएगी। ये बात बात आपको बता रहे हैं कि ये आपके जहन नशीन हो जाए। शाबाश जी आप जवाब दीजिए। हल समय कुरान, नाम नाम समिया कुरान, हल समय कुरान, नाम समिया कुरान, हल समय तल कुरान, नाम समियतुल कुरान, हल समय तुमुल कुरान। नाम समियनल कुरान। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ सिंगल जबर के साथ आ रहा है, वही बात, ये ऑब्जेक्टिव है, कुरान को सुना जा रहा है, ठीक है। अब इसी में दो और हैं। आलिमा का मतलब है उसने जाना, इल्म से याद रखना है। जी ये कौन करवाएगा ये टेबल? उसी पैटर्न पे है। जी फरीदा आप कराएंगी? नहीं तो बिलाल भाई करा दें, फहद भाई करा दें, कोई करा दो। हमारे पास टाइम कम है, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत लेट कर दिया, सॉरी। आलिम आलिमा उसने जाना, शाबाश। आलिमा उन सब ने जाना, अलिम था आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप आप सबने सब जाना, ने जाना। अलिमना हम सब ने जाना, एक्सीलेंट, ठीक है। इसी तरह से आमेला भी है, ठीक है, उसने अमल किया। जी ये भी कोई करवा दे, अशरफ भाई आप करा दें, या जिसका भी आमिला अनम्यूट होता है उस, शाबाश कराइए बेटा। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सबने अमल किया, आमिलता आपने अमल किया, आमिलतु मैंने अमल किया, आमिलतुम आप सबने अमल किया, आमिलना हम सबने अमल हम किया। सब ने अमल किया, वेरी गुड। अब नुक्ता तालीम देख लेते हैं। चौथा हमारा होमवर्क ये है, देखें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मौलम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? चाहते हैं ना हम लोग। तो कैसे? देखें इल्म की सीखने के क्या फजाइल हैं। अबू दरदादा रजी अल्लाह से रवायत है, वो कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि आपने फरमाया जो शख्स इल्म की तलाश में निकलता है
اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے، کتنی بڑی بات ہے. اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. کہ علم کی کتنی کتنی زیادہ فضیلت ہے. اور پھر اگر قرآن کا علم ہم سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ سب سلیکٹڈ منتخب لوگ ہیں، اللہ تعالی نے آپ کا انتخاب کیا ہے نا. تو اب ہمیں چوتھا ہوم ورک کیا یاد رکھنا ہے کہ اپنی QC1 کی جو بک ہے اس کو روزانہ 10 منٹ کم از کم ضرور پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیے. کسی دوست کو بتا دیں، کسی بہن بھائی کو بتا دیں ترجمہ. جب کورس ختم کر لیں گے پھر انشاءاللہ آپ ریویژن کرائیں گے، پھر آپ ٹریننگ کریں گے، آپ اسی طرح پھر کورس بھی کروائیں گے انشاءاللہ. نیت ابھی سے کریں. اور جو ہے کہ روزانہ آپ نے، اس لیے جب یہ اپنا چوتھا ہوم ورک جب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ کتاب سے پڑھیے اور 10 منٹ آپ کی جو ہم آپ کو PDF سلائڈز بھیجتے ہیں ان سے پڑھیں. اور پھر دعا کریں کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے، یعنی یہ ہم دوسروں کو بھی سکھائیں. دونوں چیزیں کریں گے نا. دیکھیں، قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھ رہے ہیں ہم ماشاءاللہ، ساتھ ساتھ سکھانا بھی شروع کر دیں تو آپ بہترین میں شامل ہو جائیں گے. الحمدللہ آج اس سبق کے اختتام پر ہم نے ٹوٹل 131 الفاظ سیکھ لی ہیں جو قرآن پاک میں 30,797 بار آتی ہیں. تو سب مل کے الحمدللہ کہیے. اور یہ خوبصورت سرخ گلاب آپ سب کے لیے، یہ سب آپ کی لگن، شوق اور محبت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آپ نے جو ہے آدھے سے زیادہ اسباق اپنے کور کر لیے ہیں. اور ٹارگٹ کتنا زیادہ لے لیا ہم نے، 41,111 پہ جانا ہے اور ہم تقریباً 31,000 پہ پہنچ گئے. صرف 10,000 رہ گیا. ابھی ہم نے دیکھیں 10 پہ ہمارا آدھا سلیبس ہوتا تھا، ہم نے 11 کیے. تو الحمدللہ. اور یہ یاد رکھیں اپنا انتخاب آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے. ساتھ ہوم ورک یاد رکھنے ہیں اور پاکٹ بک سے بھی پڑھتے رہیے اور دوسروں کو سکھائیے. ٹیچر بنے، ٹریننگ بھی ملے گی انشاءاللہ. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضروری اناؤنسمنٹ اگر کسی نے نہیں سنی، اس میں بتا رہی ہوں تاکہ ویڈیو میں بھی آپ دیکھ لیں. اگلے بدھ کو آپ کی ٹوٹل قرآن اور ٹوٹل گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی ساری. 8:40 پہ کلاس شروع ہوگی، 10 بجے تک ساری ریویژن آپ کی ہوگی اور آپ کو کوئز کی اورینٹیشن بھی دی جائے گی. اور جمعرات کو پھر آپ کا مڈ کوئز ہوگا. ٹھیک ہے، اپنے سارے گوگل ہوم ورکس کیے، اسی پیٹرن پہ آنا ہے. اپنی ورک بک ساری کمپلیٹ کریں، اس کو پڑھیں، اسی طرح سے آئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جو آپ کو نہیں کروائی ہوئی. کچھ چیزیں میں نے آپ اس وقت جب میرا کمپیوٹر کا مسئلہ ہو گیا تو میں نے آپ کو بتایا.